Hey Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you're following us on Instagram because we do pretty amazing stuff out there which you should not miss. How to acquire law skills as a law student. Step by step guide. Now all of you have this one question कि दी आप हमें इतना कुछ बताते हो that we should go for internships also, we should write research papers also, we should organize some event in our college also. हम इतना सब कुछ कैसे करेंगे? हमें पढ़ाई भी करनी है, हमारे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, आप कह रहे हो मूड कोर्ट्स में भी जाओ. तो दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो. चलो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. इफ यू रियली वांट टू अचीव something in your life as a law student, please watch this video till the end. कुछ भी मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है. चलिए, स्टेप 1, नो विच आर द बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड एज अ लॉयर. अब मैं आपको एक लिस्ट दे रही हूँ कि ये बेसिक स्किल्स हैं जो कुछ रिक्वायर्ड हैं एज अ लॉयर. ठीक है. ड्राफ्टिंग बेसिकली मीन्स राइटिंग. ठीक है ना. कॉन्ट्रैक्ट्स ड्राफ्ट करना, पिटिशंस ड्राफ्ट करना, लीगल ओपिनियंस, ईमेल्स लिखना. ठीक है ना. तो देयर आर वेरियस लेवल्स टू इट. आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए. ठीक है ना. आपकी वोकैबुलरी, सेंटेंस फॉर्मेशन, देन इट कम्स टू द फॉर्मेट एंड स्टफ लाइक दैट. राइट. तो नेक्स्ट इज स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स. एज अ लॉयर यू हैव टू स्पीक लॉट when you are attending your clients, when you are arguments आप कर रहे हो जज साहब के सामने, presentations हैं आपकी, talking to colleagues. As a lawyer you wear your profession everywhere. इवन जब आप एक लॉयर की कैपेसिटी से कहीं नहीं जा रहे हो, दैट लॉयर टैग स्टेज विद यू. Right, so you need to be really good with your communication skills. Right. Next is research skills. ठीक है. रिसर्च करना, लॉ जानना. ठीक है. क्या करंट क्या चल रहा है, अपडेटेड लॉ क्या है, वो सब जानना, नॉलेज ऑफ लॉ. Right. Next is personality development. As a lawyer, having a very strong personality is again a very important thing. I've done a very much detailed video on this. Reading without getting bored. As a lawyer, you have to read a lot. Like, you have to read and not get bored, and instead understand it. And you should have the zeal to read more and more and more and more. That is what is एडवोकेसी ऑल अबाउट. अगर आप एडवोकेसी की किसी भी फील्ड में चले जाइए, मोस्टली फील्ड में आपको रीड करना पड़ता है. राइट. नेक्स्ट इज नॉट बीइंग एन इंट्रोवर्ट. Again, if you are an introvert as an advocate, doesn't mean that you cannot be an advocate. Basically, you need to change this habit of yours. Right. Next is being emotionally strong, handling mental stress. Now, as a lawyer, you need to be disciplined, but you need to be also emotionally strong. आपको बहुत emotionally strong होने की ज़रूरत रहता है. आपको mental stress आना चाहिए, कंट्रोल करना अपना. You should know how to handle mental stress. एक तरह से I remember one of the lawyers I met, we were discussing about advocacy and he said that what is law all about, what is advocacy all about. It is about taking someone else's problem into your hands. Basically the client gives you the documents and everything, the fees. एक तरह से वो हमें अपनी प्रॉब्लम दे जाते हैं कि नाउ दिस इज योर प्रॉब्लम. राइट. So not taking stress and being disciplined. Right. Now being disciplined is very important, because if you are not disciplined, if you do not file the case when you are telling your client that इस डेट तक केस फाइल हो जाएगा, या इस डेट तक आपका काम हो जाएगा, लीगल ओपिनियन हो जाएगी, you I'll send the legal opinion, what will happen? Next time when someone would inquire about you from that client would say, यार वकील तो बहुत अच्छे हैं, but he or she delays. They do not do the work on time. So be a person, be an advocate of your words. जो आप कहते हो, किसी को डेडलाइन देते हो, तो वो काम डेडलाइन से पहले हो जाना चाहिए. Right. So being disciplined, being a good planner, being productive, time management is all you need to learn as a law student only. Question is, how will you acquire all these skills all together? When did I say that you have to acquire all these skills together? No, you have to acquire these skills one by one, एक करके, one by one. And एक बात सुनो, I said that you should know law.
You are studying law, you're attending classes, you are writing your projects, you have your exams. So in a way, you are studying law, right? क्या ध्यान से पढ़ना है. You have to be mindful of what you are studying. राइट. नॉर्मली हम क्या करते हैं, ठीक है यार पढ़ लिया, एग्जाम्स में पास हो गए, बट नहीं, अब हमें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये भी एक स्किल है. दो लोग हमें कहते हैं कि कोई फायदा नहीं होगा, बट मार्क माई वर्ड्स, फायदा होगा, 101% होगा. राइट. सो वेन एवर यू आर स्टडिंग लॉ, यू हैव टू पे अटेंशन. जब आप स्टडी कर रहे हो, जब आप लॉ पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग लॉ, आप क्या कर रहे हो, यू आर स्टडिंग लॉ. तो एक तरह से आपकी रीडिंग हो रही है, ठीक है. देन इफ यू आर रीडिंग, यू आर गेटिंग बेटर एट राइटिंग ऑल्सो, एंड समवे यू आर ऑल्सो गेटिंग बेटर विद स्पीकिंग. राइट. तो ये सब कुछ एक तो हमें इकट्ठा नहीं करना. और बेस्ट पार्ट ये है कि जब हम एक चीज़ कर रहे हैं ना, तो हम दूसरी चीज़ भी थोड़ा थोड़ा, एक स्किल एक्वायर कर रहे हैं तो हम दूसरी स्किल पे भी थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं. राइट. सो वी नीड टू बी माइंडफुल ऑफ बीइंग सीरियस व्हेन डूइंग दीज things. Best part is when you work on one skill, you unknowingly work on one or two other skills too. For example, you say that I want to work on writing. ठीक है, मुझे अपनी ड्राफ्टिंग इम्प्रूव करनी है. लॉ गिरी में बताया हुआ है कि आपको जजमेंट्स पढ़नी चाहिए. ठीक है ना. तो आप रीसेंट जजमेंट्स पढ़ने लग गए हो, ठीक है, उसमें से मार्क करने लग गए हो. अब जजमेंट्स पढ़ रहे हो, रीसेंट जजमेंट्स पढ़ रहे हो, कि तो लॉ की नॉलेज भी इन्हांस हो रही है, लॉ की नॉलेज भी इन्हांस हो रही है, वोकैबुलरी इन्हांस हो रही है, तो स्पीकिंग भी बेटर होगी, राइटिंग भी बेटर होगी. तो अगर आप एक स्किल पे भी काम करते हैं, तो आप मल्टीपल स्किल्स पे काम कर रहे हैं अननोइंगली. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर टू बिगिन. फ्रॉम वेयर टू बिगिन. ठीक है, कौन सी स्किल सबसे पहले हम एक्वायर करें जिसके अंदर आप सबसे ज़्यादा वीक हो, या जिसकी नीड आपको सबसे ज़्यादा लग रही है, जिसकी नीड आपको सबसे ज़्यादा लग रही है. मान लीजिए दैट यू हैव टू, you have your mood courts wherein you face problem with speaking, so that is the need of the hour. You need to improve your speaking, or you're good with speaking but you face problem when you have to write your memorials, then you have to improve your writing. You are not able to find words to explain things, right? Then you need to work on your vocabulary, right? तो जो need of the hour है, सबसे ज़्यादा need है आपको, वो चीज़ पे जाइए, या फिर जिसमें आप बहुत ज़्यादा weak है, वहाँ से you should begin. Step 3, find out the level that you are at. Now level का मतलब क्या होता है, मैं ये समझा देती हूँ. For example, you say that I have to improve my writing. मुझे अपनी writing skills जो हैं वो improve करनी है. ठीक है ना. तो अब राइटिंग स्किल्स के अंदर क्या होता है कि आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए. इफ यू हैव टू इम्प्रूव योर ग्रामर, देन यू शुड हैव अ गुड सेंटेंस फॉर्मेशन. कुछ गलती नहीं होना चाहिए सेंटेंस फॉर्मेशन में. ठीक है. नेक्स्ट लेवल इज दैट ओके फाइन, से यू से आई हैव डिसेंट ग्रामर है, मेरी सेंटेंस फॉर्मेशन भी ठीक है, ठीक है, बट मुझे आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, या मेरी वोकैबुलरी वीक है, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, और आई नीड टू write in such a way that I am able to attract the reader. I want to write in such a way that I can grab the attention. Or you say that okay fine, everything is right but I want to brush up my writing. ठीक है. someone can be कि जी मुझे तो अपनी ग्रामर पे काम करना है, right? So you need to find out कि what is there that you need to work on, right? ठीक है ना. हर किसी को ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है. इफ द नीड ऑफ द आर इज दैट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, बट इफ द नीड ऑफ द आर इज नॉट दैट, डोंट डू दैट. तो फाइंड द लेवल दैट यू आर एट, राइट. Step 4, create a everyday habit or routine. अब क्या है, for example, taking the previous example only, that I want to improve my writing skills. Now I write in my journal, in my planner, that I want to improve my writing skills this year. Right, I want to improve my writing skills this year. That's it. No planning, nothing. कैसे होगा, क्या होगा. I guarantee you'll work on it for a day and then you'll give up. But no, we have to work on the skill. और कैसे हम करेंगे? We will be developing a everyday habit. We'll be writing it today. Right? कैसे? For example देती हूँ मैं आपको. You say I will improve my writing skills. Instead of saying this, what you will be saying is, I will read 10 pages of a book every day, find the meaning of the new words and note down in a notebook and try to retain them.
राइट अब आपने अपने माइंड को बता दिया, अपने आप को इंस्ट्रक्शन दे दी दैट दिस इज व्हाट आई हैव टू डू। ठीक है ना, ये इंस्ट्रक्शन हो गई और ये इंस्ट्रक्शन क्या बन जाएगा, ये एक्शन बता दिया आपने अपने आप को कि ये एक्शन करना है और ये क्या है, दिस इज अ गोल। ठीक है ना, हम नॉर्मली क्या करते हैं, वी जस्ट राइट अ गोल एंड वी आर लाइक ओके फाइन आई विल वर्क ऑन दिस। नो, वी आर गोइंग टू इंस्ट्रक्ट आवरसेल्व्स एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू सेट अ एक्शन प्लान। ठीक है ना, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, यू से आई विल वर्क ऑन माय स्पीकिंग स्किल्स से। ठीक है, इसके बजाय आप कहते हो I will speak on any topic for 10 minutes in front of the mirror and watch any English movie for 30 minutes every day. Again, ये क्या है, सिर्फ एक गोल है, एम है। ठीक है ना, बट यहाँ पे क्या है, आपने अपने दिमाग को बोला कि ये एक्शन लेना है। क्या करना है, ये एक्शन लेना है। अगर मैं ये एक्शन लूंगा या लूंगी तो आई विल बी एबल टू अचीव माई गोल। राइट, एंड ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी इज द की। एंड अगर आप एक्शन डिफाइन कर दोगे, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक्शन डिफाइन कर रहे हैं। अगर हम एक्शन डिफाइन कर देंगे, चांसेस आर मोर दैट वी विल बी डूइंग इट एवरी डे। राइट, एंड मैं बहुत सारे टिप्स देती हूँ, मुझे पता है मैंने ड्राफ्टिंग वाली वीडियो में, हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग गुड इंग्लिश वाली वीडियो में, और भी बहुत सारी वीडियोस में रिसर्च कैसे करते हैं, इतने सारे टिप्स दिए हैं। उसमें से ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे टिप्स उठाने हैं, कुछ टिप्स उठाओ, उन पे काम करो, 2-3 महीने उस एक टिप पे काम करो, एक हैबिट अडॉप्ट करो, उसको ऊपर वर्क करो एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, make your own step-by-step plan. One of the biggest mistakes that we commit is what? That we just look on the bigger goal. We do not create a step-by-step ladder to reach that goal. ठीक है ना, अगेन टेकिंग फॉर एग्जाम्पल, यू से दैट आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई ड्राफ्टिंग, राइटिंग इम्प्रूव करना है मुझे अपना किसी भी हालत में। सिंपली ये कहने से नहीं हो जाएगा, आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाना पड़ेगा। स्टेप 1 मैं ये करूँगी, स्टेप 2 मैं ये करूँगी, स्टेप 3 मैं ये करूँगी। नॉट ओनली स्टेप्स, आपको ये भी डिफाइन करना है कि फर्स्ट 3 months आई विल बी डूइंग दिस। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, जौन सा भी मंथ है उससे, for example, you are watching this video in January, you say okay, Jan, Feb, March I'm going to do this step, after Jan, Feb, March I'm going to do this, and eventually you will see improvement. सब कुछ इकट्ठा नहीं करना है, जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने शेयर किए हैं सब कुछ इकट्ठा नहीं करना है। हमने 1 या 2 चीजें उठानी है, इम्प्लीमेंट करना है। क्या करना है, एक्शन में लेकर आना है, उनको इम्प्लीमेंट करना है एंड देन मूव ऑन टू नेक्स्ट। जब हम लैडर चढ़ेंगे, इवेंचुअली वील रीच द टॉप, इवेंचुअली वील रीच द टॉप। अब ये स्टेप्स डिसाइड कैसे करने हैं, लॉ गिरी की वीडियोस देखकर। लॉ गिरी पे हर टाइप की वीडियो आपको मिल रही है। इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करनी है, ड्राफ्टिंग कैसे इम्प्रूव करनी है, रिसर्च कैसे इम्प्रूव करना है, एवरीथिंग फॉर फ्री। फॉर फ्री यू आर गेटिंग दिस, फॉर फ्री यू आर गेटिंग ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स, फ्री में मिल रहे हैं। तो अब इन फ्री जो लॉ गिरी आपको फ्री में बता रहा है कि सब कुछ कैसे करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वीडियो करी हुई है 5 easy ways to learn drafting। देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आप अगर एफर्ट नहीं डालोगे, इफ़ यू विल नॉट पुट इन एन एफर्ट, थिंग्स आर गोइंग टू गेट रियली डिफिकल्ट। अगेन लुक एट योर बिगर गोल। आपको क्यों ये स्किल्स एक्वायर करनी है, क्या करना है आपको, लॉ फर्म में काम करना है, बहुत बड़ी लॉ फर्म में काम करना है, आपको एडवोकेट बनना है, नाम कमाना है, आपको गरीबों की मदद करनी है, तो इसलिए आपको ये सारी स्किल्स चाहिए, बिकॉज कोर्ट में लड़ना है खड़े होकर। क्यों, वाई डू यू नीड टू डू दिस, वाई डू यू वॉन्ट टू एक्वायर ऑल दी स्किल्स, दैट इज गोइंग टू ड्राइव यू। आपके अंदर ड्राइविंग फोर्स होनी चाहिए और आपको खुद एफर्ट डालनी पड़ेगी। कोई आपको आके नहीं करवाएगा, कहीं पे भी चले जाओ कोई भी नहीं करवाएगा। जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ वो ही एंड में आपको वो बताएंगे जो आपको खुद ही करने पड़ेंगे गाइस। सो पुट इन एन एफर्ट ऑन योर ओन प्लीज, राइट। तो अब आपने क्या करना है, आपने लॉ गिरी की वीडियो देखनी है। फॉर एग्जाम्पल यू से आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई ड्राफ्टिंग, ठीक है भाई, ड्राफ्टिंग वाली वीडियो खोलो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर नोट्स, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर नोट्स एंड देन
plan. We are going to prepare notes and then plan. I am going to prepare notes from this video, 5 easy ways to learn drafting, and then I'm going to show how I plan. These are the notes that I have taken from the video. Now ये सारे मेरे पास टिप्स हैं. अब ये सब कुछ मैं हर रोज तो कर नहीं सकती, तो इसमें से मैं क्या करूंगी, चूज करूंगी. ये सारे क्या है मेरे पास, ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में से चूज करूंगी. अब और फिर क्या करूंगी, प्लान बनाऊंगी. अब मैं दिखाती हूँ मैंने प्लान कैसे बनाया. सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं अपने आप को पूछूंगी, वो क्या क्वेश्चन पूछूंगी मैं अपने आप को, लेवल कौन सा है मेरा. मैंने बताया था ना, लेवल, वेयर डू आई स्टैंड, वेयर डू आई स्टैंड, क्या मैं कौन से लेवल पे हूँ. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमें अपना लेवल पता होना चाहिए, राइट. और सबको पता भी होता है. नाउ प्रॉब्लम, मैंने क्या लिखा है, मेरी प्रॉब्लम क्या है, नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ वाइल ड्राफ्टिंग. ठीक है, नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ वाइल ड्राफ्टिंग, दिस इज माई problem. Okay, I have written it. You also have to write like this in your journals, in your diaries, whatever. Notebook लगाओ, उसके अंदर you need to have your planner. Okay, solution क्या है इसका, that I improve my vocabulary. Now what is this, this is my goal, this is my goal. अब मुझे क्या करना है, मुझे I have to improve my vocabulary in the coming days. उसके लिए मैं क्या करूंगी, प्लान बनाऊंगी. कैसे प्लान बनाऊंगी, ये प्लान बनाया हुआ है. अब मैंने ये क्या प्लान बनाया हुआ है, दैट January, February, March I'll be reading newspaper every day for 30 minutes. और लीगल न्यूज़, मैं सिर्फ लीगल न्यूज़ पढ़ूंगी 30 मिनट्स के लिए न्यूज़पेपर में हर रोज. और टाइम भी अलॉट करना है, टाइम भी अलॉट किया है मैंने अपने आप को कि आफ्टर हैविंग लंच फ्रॉम 2 to 2:30, 30 मिनट्स के लिए आई बी रीडिंग न्यूज़पेपर. मेरे पास तब टाइम होता है, आपके पास मे बी सुबह टाइम हो, 7 o'clock, रात को टाइम हो, कभी भी जो आपका फ्री टाइम है वो आप मेंशन करोगे वहाँ पे. दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू एंड यू आर गोइंग टू सेंड दिस टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट दैट इज देयर बाय द नेम @IamLogiri. You have to do this. Next is writing about anything and using these words. ठीक है ना. अब whatever words I am reading in the newspaper, be it common words or legal words, I'm going to find the meaning and also make notes. मैंने बोला अपने आप को, and then I'm going to write about anything and use these words and obviously check them on grammarly.com also कि अगर कोई मेरी गलती है तो I can catch, right. At night, ये कब मैं करूँगी, 9 o'clock. और मुझे 9 o'clock से 10 o'clock तक या 11 o'clock तक, जब तक मैं सो नहीं जाती, मैं ये करूँगी, राइट. वीकेंड्स आई बी रीडिंग 4 to 5 recent judgments plus make notes also from these judgments also. तो मैंने ये सब कुछ कवर कर लिया. मतलब मैं दिन का अराउंड 1.5 आवर दे रही हूँ इम्प्रूव करने के लिए, और वीकेंड पे थोड़ा ज़्यादा दे रही हूँ बिकॉज वीकेंड पे मेरे पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है. ये मैं सिर्फ 3 months के लिए फॉलो करूँगी सो दैट आई डोंट गेट बोर्ड. आफ्टर दैट आई हैव मोर प्लान्स. व्हाट अप्रैल मई जून में I am going to do to improve my vocabulary. I am going to start with word power made easy. I am going to do 1 session in 3 days क्योंकि वही मेरे पास 30 मिनट्स का टाइम है, 2 to 2:30, और इसके अंदर मैं ये एक सेशन पूरा एक टाइम पे नहीं कर सकती, तो मैं 3 days लगाऊंगी एक सेशन के ऊपर ताकि मैं उसको अच्छे से कर सकूं. मैंने बुक देख ली है, राइट. रिवाइजिंग इंटायर बुक इन जून. और जून के अंदर क्या होती है, हॉलीडेज होती हैं. तो क्योंकि जून के अंदर हॉलीडेज होती हैं, मैं अपनी सारी की सारी बुक रिवाइज भी कर दूंगी सो दैट मेरी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाए, राइट. अब फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर में क्या करूंगी, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आई स्टार्ट रीडिंग 1 judgment every day. 1 judgment every day, जुलाई, अगस्त, सितंबर. ठीक है ना. और वो टाइम क्या जाएगा, अगेन 30 मिनट्स या 1 hour वाले स्लॉट में मैं उसको डाल सकती हूँ. अब यू हैव टू मेंशन व्हेन. ठीक है ना. यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको एग्जाम्पल दिया था, टाइम बताना है. ऑब्वियसली क्योंकि आने वाले महीने यू कैन नॉट प्लान, बट फिर भी हमारे पास 1.5 2 hours फ्री होते हैं पूरे दिन में. यू आर गोइंग टू गिव योर सेल्फ स्लॉट्स बिकॉज आप अपनी चीज़ें भी तो कैरी करोगे ना, अपनी ड्राफ्टिंग डायरी, वो बुक जिसमें से आपको पढ़ना है, न्यूज़पेपर या कुछ भी, यू आर गोइंग टू कैरी दैट. October, November and December में what I'm going to do is start reading books every day for lifetime, plus also make notes from these books. So I have created a everyday habit for a lifetime saying read books every day for 30 minutes to 1 hour. अब मैं अपने आप को टाइम अलॉट कर सकती हूँ कि मैं आफ्टर लंच पढ़ूँ या आफ्टर डिनर पढ़ूँ. प्लानर के अंदर क्या क्या, व्हाट इज द टेक अवे, प्लानर के अंदर क्या क्या नोट करना है कि प्रॉब्लम एरिया क्या है आपका, प्रॉब्लम क्या है,
ठीक है, उसका सॉल्यूशन क्या है, लॉगिरी ने क्या टिप्स दिए हैं, मुझे क्या वर्केबल लग रहा है, एंड देन अकॉर्डिंगली यू आर गोइंग टू प्लान द एक्शन, द टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू डू दिस, दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। सब कुछ एक साथ नहीं करना है, पर धीरे धीरे करना है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल 1 semester you can improve your drafting, or 1 year you put in for drafting, second year you say okay fine let's work on my speaking, anything like that। सब कुछ एक साथ नहीं करना है, सब कुछ एक साथ करोगे नहीं हो पाएगा, एक एक करके करोगे अच्छे से होगा एंड स्किल्स भी एक्वायर कर पाओगे। ओके, प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ, वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।